السلام علیکم. اپنا نیو لیکچر اسٹارٹ کرتے ہیں. ہم لوگ کیا پڑھ رہے ہیں؟ سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس. صحیح. اس میں ہم نے چیپٹر 1 ڈیٹیل میں اسٹڈی کر دیا کہ ہمارے پاس سافٹ ویئر کوالٹی کیا ہے، ہمارے پاس کوالٹی کیا ہے. آپ کے پاس کوالٹی کیا ہے؟ اگر ہم اس کی ایبسٹریکٹ ڈیفینیشن کی بات کریں تو کیا ہو اس میں کہ آپ یوزر کی جو ریکوائرمنٹس ہے اس کو کیا کرتے ہو؟ فلفل کرتے ہو. سیکنڈ یہ ہے کہ آپ جو سافٹ ویئر یا پروڈکٹ یا ہارڈ ویئر جو چیز بنا رہے وہ آپ کے پاس کیا ہو؟ آپ کے پاس ریلائبل ہو اینڈ ایزی ٹو مینٹین ہو. تو یہ آپ کے پاس کیا ہوگا؟ سافٹ ویئر کوالٹی ہوگا. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے سافٹ ویئر کوالٹی ایٹریبیوٹس کون کون سے ہیں کہ آپ کے پاس یوزیبل ہونا چاہیے، پورٹیبل ہونا چاہیے، مینٹینیبل ہونا چاہیے. آپ کے پاس اس میں آپ کے پاس ہو گیا یوزیبلٹی اس کی ہونی چاہیے، فنکشنالٹی ہونی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس کیا کوالٹی ایٹریبیوٹس ہیں. پھر ہم نے اس کے بعد سیکنڈ چیپٹر پڑھا جس میں ہم نے کوالٹی فریم ورک مینجمنٹ فریم ورک پڑھا کہ آپ نے اگر کوالٹی ایٹریبیوٹس لانے اپنے پروڈکٹ میں تو اس کے لیے کون سا فریم ورک آپ نے یوز کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم نے ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا کہ آپ کے پاس آبجیکٹس ہوتے ہیں کہ کون آپ ڈیفائن کرتے ہو کہ کون کون سے آبجیکٹس پہ آپ جو ہے کوالٹی اچیو کرو گے. اس کے بعد ہمارے پاس پروسیس تھے کہ اس کو جو آپ نے آبجیکٹس ڈیفائن کر دے اس میں آپ کیا کیا کون کون سے پروسیس ڈیفائن کرو گے. تو وہ پروسیس بھی کوالٹی آف اے پروسیس ہونا چاہیے. پھر ہم نے ادھر ریکوائرمنٹس کی بات کی تھی کہ ریکوائرمنٹس ہمارے پاس کیا ایک بیسک ٹول ہے فار اشور کرنے کے لیے کہ آپ کے پاس آپ نے کوالٹی آف اے پروڈکٹ کریٹ کیا ہے. صحیح. پھر ہم نے یوزرس کی بات کی تھی کہ آپ کے پاس جس ٹائپ کا بھی یوزر ہو، چاہے آپ کے پاس کسٹمرس ہو، یوزرس ہو، ایکسٹرنل یوزر ہو، انٹرنل یوزرس ہو، سب کے آپ نے جو ہے ریکوائرمنٹس کو کیا کرنا ہے؟ فلفل کرنی ہے. ہم نے پھر اس میں میئرمنٹ کی بات کی تھی کہ کس طرح سے ہم نے اپنی کوالٹی کو میئر کرنا ہے اور ہم نے وہاں پہ کوالٹی کی بات کی. ٹھیک ہے. پھر سیکنڈ چیپٹر میں ہم نے ماڈل اسٹڈی کیے کہ آپ کو فریم ورک تو پتہ چل گیا کہ فریم ورکس ہمارے پاس کیا ہے. اب اس فریم ورک کے لیے ہم کس طرح سے ماڈل اس میں لائیں گے. پھر ہم نے اس میں کہا تھا کہ یہ ماڈل ہمارے پاس ایک آپشن ہے فار ایویلیٹ کرنے کے لیے بھی کہ آپ نے کوالٹی اچیو کر لی ہے کہ نہیں. صحیح. تو اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا فریم ورکس میں کہ سب سے پہلے آپ ہمارا جو اسٹیپ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اپنی ریکوائرمنٹس کو اسٹڈی کرنا ہے کہ آپ کے پاس کیا ریکوائرمنٹس ہے. بیسیکلی آپ سے یوزر کیا مانگ رہا ہے. کیونکہ ریکوائرمنٹس ہمارے پاس ایک مین اسٹیپ ایک بیسک اسٹیپ ہے. جب تک آپ کو ریکوائرمنٹ سمجھ نہیں آتی آپ کا پروڈکٹ نہیں کریٹ ہو سکتا. کیونکہ یوزر نے جو چیز آپ سے مانگی ہے آپ کو وہی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے کریٹ کیا کرنا ہے تو آگے جا کے آپ کیا اس کو کریٹ کریں گے. صحیح. سیکنڈ اسٹیپ تھا کہ جیسے آپ کو آپ کی ریکوائرمنٹس پتہ چل گئی آپ نے اس کے کوالٹی ایٹریبیوٹس جو ہے کوالٹی فیکٹرز فائنڈ آؤٹ کرنے کہ آپ کے پروڈکٹ کے لیے کون سے کوالٹی ایٹریبیوٹس ہیں، کون سے کوالٹی فیکٹرز آپ کو چاہیے اپنی ریکوائرمنٹس کو فلفل کرنے کے لیے. صحیح. پھر اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہوتی ہے کہ آپ کو کوالٹی ایٹریبیوٹس پتہ چل گئی کہ اب ہم نے کیا پڑھا؟ میکال ماڈل پڑھا ہے اور آئی ایس او کا ماڈل پڑھا ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ نے پڑھ لیا کہ میکال ماڈل میں ریلائبلٹی کیا تھی کہ آپ کا پروڈکٹ فیل نہیں ہونا چاہیے. تو وہاں پہ آپ کے پاس ایکوریسی پہ ڈیپینڈ کر رہا تھا اینڈ ایرر ٹالرنس پہ. جبکہ آئی ایس او کے اسٹینڈرڈ پہ ہم جب ریلائبلٹی کی بات کرتے تو وہاں پہ ہم میچورٹی کی بات کر رہے تھے اور ریکوریٹی کی بات کر رہے تھے. تو ہمیں پتہ چلا کہ آپ کے پاس کوالٹی ایٹریبیوٹس تو سیم ہو سکتے ہیں لیکن ان کے جو سب کرائٹیریا آپ کہہ سکتے ہو یا سب فیکٹرز جو ہے وہ آپ کے پاس ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. مینس ایک سافٹ ویئر میں آپ کو کوئی اور فیکٹر چاہیے ہوتا ہے، ایک سافٹ ویئر میں آپ کو فیکٹر کیا چاہیے. فار ایگزامپل آپ نے وہ کریٹ کیا ہے، کوئی ایپ کریٹ کر رہے ہو. فرسٹ ٹائم آپ نے وہ ایپ کریٹ کی تو وہاں پہ آپ کو ریلائبلٹی چاہیے تھی. اب وہاں پہ آپ نے ریلائبلٹی تو چاہیے لیکن سب فیکٹر کیا چاہیے تھا آپ کو؟ وہاں پہ ایکوریسی چاہیے کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ ایکوریسی ہونی چاہیے، جو آپ کی ویب ایپ جو ہے وہ ایکوریٹ ڈیٹا آپ کو دے. ٹھیک ہے. تو وہ آپ کی کیا ہوگی؟ ایکوریسی. سیکنڈ ٹائم آپ نے وہی ایپ کیا کی اس کو اپڈیٹ کیا یا اس کو کسی اور کسٹمر کے لیے بنایا تو وہاں پہ ان کو جو ریلائبلٹی چاہیے وہ کس بیس پہ چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ریکور کر سکے. تو آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ اپنی ریکوائرمنٹس کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کرنا ہے کہ آپ کے پاس ریکوائرمنٹس کیا ہے، اس کی کوالٹی فیکٹر اسٹڈی کرنے. اب کوالٹی فیکٹرز تو آپ کو پتہ چل گئے، کوالٹی ایٹریبیوٹس تو پتہ چل گئے. پھر آپ نے وہاں کا کرائٹیریا دیکھنا ہے، وہاں کے سب فیکٹرز دیکھنے ہیں کہ وہاں پہ آپ کو کوالٹی ایٹریبیوٹس کس بیس پہ چاہیے. آپ کو اسائنمنٹ بھی دی ہے اسی لیے دیا تھا کہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کیونکہ یہ فریم ورک ہے
ये मॉडल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता चल जाए कि वो आप क्या करो, पहले रिक्वायरमेंट स्टडी करो, फिर उसके क्वालिटी एट्रीब्यूट स्टडी करो और फिर वहाँ पे सब क्राइटेरिया। जब आपको ये सब पता चल जाए उसके बाद आप क्या करो, मॉडल चेक करो कि आपको कौन सा मॉडल चाहिए। सही, जब आपको मॉडल पता चल गया फिर आप उस मॉडल को अपने प्रोडक्ट में यूज़ करो कि आपको कौन कौन से क्राइटेरिया में क्या क्या चीज़ें चाहिए थी। असाइनमेंट भी आपको इसीलिए दी है ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा मॉडल आप कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, कैसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिए, 3 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, क्वालिटी के बारे में, फ्रेमवर्क के बारे में और मॉडल्स के बारे में। आज का हम अपना न्यू लेक्चर स्टार्ट करते हैं, दैट इज सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग। कि हमारे पास सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग क्या है या सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस हमारे पास क्या है। सही, तो सबसे पहले हमारे पास है क्वालिटी इंजीनियरिंग हमारे पास क्या है। अब क्वालिटी इंजीनियरिंग क्या कहा इन्होंने कि ये हमारे पास एक प्रोसेस आप कह सकते हो, जो आपके पास एक स्ट्रिक्ट प्रोसेस कह सकते हो या एक डिफिकल्ट प्रोसेस कह सकते हो, जो आप अपने जो प्रोडक्ट डेवलप कर रहे होते हो तो उसकी ईच स्टेप पे उसको अप्लाई करते हो। तो उसके अप्लाई करने का फ़ायदा ये कि आप चेक कर रहे होते हो अपनी क्वालिटी को कि आपने क्वालिटी अचीव की है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि ये स्ट्रिक्ट प्रोसेस इसलिए से कहा गया है कि ये आपने ईच एंड एवरी प्रोसेस पे यूज़ करना है, ईच एंड एवरी स्टेप पे यूज़ करना है। अब यहाँ पे क्वालिटी इंजीनियरिंग में उन्होंने कहा है कि चाहे आप एनालाइज करो, डेवलपमेंट करो, मैनेज करो या मेंटेन करो, तो इन 4 स्टेप्स में आपने क्या करना है, क्वालिटी के जो जो आपके स्टेप्स है, क्वालिटी एश्योरेंस के जो प्रोटोकॉल्स है, इनका जो मॉडल के स्टेप्स है, उन सबको आपने अचीव करना है, उन सबको आपने यूज़ करना है। किसी पे भी आपने ये नहीं करना कि एनालाइज पे यूज़ किया तो डेवलपमेंट में यूज़ नहीं किया, मैनेजमेंट में यूज़ किया, मेंटेनेंस पे यूज़ नहीं किया, नहीं। आपने ईच एंड एवरी प्रोसेस पे, ईच एंड एवरी स्टेज पे क्वालिटी को अचीव करने के लिए उनके जो प्रोसेस है, उनके स्टेप्स को अप्लाई करना है। तो जितने आपको स्टार्ट में एरर्स पता चल जाएंगे, जितना आपको स्टार्ट में पता चल जाएगा कि आपका क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट अचीव हुआ, तो एट द एंड जाके के भी आपको एक अच्छा क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि क्वालिटी एश्योरेंस, अगर आपको चैप्टर 1 याद हो तो हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। ये दो चीज़ है जिसको हम अचीव करने के लिए क्वालिटी के स्टेप्स को बार बार यूज़ करते हैं। अब क्वालिटी कंट्रोल क्या हमने पढ़ा है कि आप क्या करते हो कि अपने जो प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हो उसमें एरर्स फाइंड करते हो कि आपको एरर्स मिल रहे हैं कि नहीं, इजी आइडेंटिफाई हो रहे हैं और इजी रिमूव हो रहे हैं कि नहीं। तो दैट इज़ व्हाट योर क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी कंट्रोल क्या आपके पास ये डेवलपमेंट प्रोसेस में आता है। क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, ये मेंटेनेंस फेज पे आता है, जब आपने मेंटेन करके उसको दे दिया, कस्टमर को अपना प्रोडक्ट दे दिया, तो वो जब उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है, यूज़ करने के बाद उसको पता यूज़ करने के बाद भी उसके पास कोई एरर्स नहीं आ रहे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रहे, तो वो क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या कर रहा है, क्वालिटी एश्योरेंस कर रहा है कि आपके प्रोडक्ट में कोई एरर नहीं है। और अगर एरर है भी तो आपका प्रोडक्ट जो है वो इतना मेच्योर है, इतना अच्छा है कि वो उन सारे एरर्स को रिमूव कर रहा है, उन सारे एरर्स को प्रिवेंट कर रहा है आने के लिए। सही, तो दैट इज़ व्हाट योर क्वालिटी इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे हमारे पास उन्होंने कहा है कि हमारा मेन गोल भी यही है कि फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम द बिगिनिंग हमने क्या कोशिश करनी है, मिनिमाइज करने अपने जितने भी एरर्स हैं उनको मिनिमाइज करने के, हमारे पास एरर्स ना आए फ्रॉम द स्टार्ट। क्योंकि फ्रॉम द फर्स्ट फेज, एनालिसिस फेज पे आप उसको क्वालिटी को यूज़ करोगे तो वहाँ पे आपके पास आपको क्या हो जाएगा, एरर्स मिल जाएंगे, एरर्स रिमूव हो जाएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, क्वालिटी कंट्रोल हो जाएगा। डेवलपमेंट फेज में भी यही होगा कि एरर्स आपको फाइंड हो गए, एरर्स रिमूव हो गए, तो आपको क्या मिला, क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट मिलेगा। तो दैट इज़ व्हाट योर क्वालिटी इंजीनियरिंग। सो नाउ हम स्टडी करते हैं कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग हमारे पास एक टाइप ऑफ क्वालिटी इंजीनियरिंग है, या एप्लीकेशन आप कह सकते हो, क्वालिटी इंजीनियरिंग की एक एप्लीकेशन है। ठीक है, उसकी फर्दर कैटेगरीज में से आती है। वहाँ पे भी हमारे पास क्या है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग में क्या चेक करते हैं कि जो हमारे पास SDLC है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उसकी ईच एंड एवरी स्टेप पे हमने ये क्वालिटी के स्टेप्स को अचीव किया है कि नहीं। तो दैट इज़ व्हाट योर सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे इन्होंने भी यही कहा है कि आपके पास जितने भी प्रोसेसेस हैं आपको प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करने के लिए, इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है, हमारे पास रिक्वायरमेंट है, आपके पास स्पेसिफिकेशन है, हाई लेवल डिज़ाइन है, कंस्ट्रक्शन है, लो लेवल डिज़ाइन है, आपके पास कोडिंग है, टेस्टिंग है एंड इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस फेज है। तो इस 6 to 8 स्टेप्स से या आपके पास 10 स्टेप्स है, जितने भी स्टेप्स है, क्या उन सब स्टेप्स में आपने क्वालिटी को यूज़ किया है कि नहीं। अगर आप रिक्वायरमेंट्स करें तो वहाँ पे आपने क्वालिटी अचीव की है कि नहीं, अगर आप स्पेसिफिकेशन करें तो वहाँ पे आपने क्वालिटी अचीव की है कि नहीं। ये नहीं कि आप एक स्टेप में करो और दूसरे स्टेप में उसको इग्नोर कर दो, ईच एंड एवरी स्टेप में आपने क्वालिटी के स्टेप्स को क्या करना है, फॉलो करना है।
सही। तो जितना अच्छा आप सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग को फॉलो करोगे उतना अच्छा आपका सॉफ्टवेयर का क्या होगा, वर्क फ्लो क्रिएट होगा, और उतना अच्छा आपके पास एक अच्छा प्रोडक्ट क्रिएट होगा। तो जो आप अगर अपने एस डी एल सी में सॉफ्टवेयर क्वालिटी को यूज़ करते हो, तो इट मीन्स आप क्या कर रहे हो, सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग क्या कर फॉलो कर रहे हो। मेन टास्क की अगर बात करें, मेन टास्क फॉर सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग यही है कि वो आप यहाँ पे वेरीफाई करते हो एंड वैलिडेट करते हो। ठीक है, यहाँ पे आप इंश्योर करते हो क्वालिटी के थ्रू कि क्या आपका प्रोडक्ट जो है वो वेरीफाई है कि नहीं। वेरिफिकेशन क्या होती है हमारे पास, कि क्या आपने जो प्रोसेस क्रिएट किया, जो आपने जो स्टेप्स डिफाइन किए, क्या ये आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स है कि नहीं। एंड वैलिडेशन आपके पास क्या है, कि आप जो सिस्टम क्रिएट कर रहे हो, जो प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हो, क्या ये यूज़र की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है कि नहीं। तो वही बात होगी कि आपने क्या करनी है, रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने, चाहे वो सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स हो, चाहे वो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स हो। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग आपके पास इंश्योर करती है कि क्या आपका जो सिस्टम है, इज़ इट वैलिडेट और इज़ इट वेरीफाइबल कि नहीं। ठीक है, जो जो एक्टिविटीज़ आपने, जो जो प्रोसेस आपने डिफाइन किया, क्या वो वेरिफिकेशन है कि नहीं, क्या आपने जो एक्टिविटीज़ डिफाइन किया, क्या वो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है कि नहीं। तो वो आपके पास क्या होगी, वैलिडेशन। सेकंड हमारे पास यहाँ पे क्या है कि क्वालिटी की जो आप यूज़ करते हो, ये किसी एक बंदे का काम नहीं है, मतलब सिर्फ कोडर का काम नहीं है, ये ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ एसडीएलसी टीम मेंबर का है। आपके रिक्वायरमेंट्स टीम मेंबर में अगर 10 लोग हैं, तो 10 के 10 लोगों का काम क्या है, कि उन्होंने इन जो क्वालिटी की एक्टिविटीज़ है उनको क्या करना है, फुलफिल करना है। अगर आपके फॉर्मल स्पेसिफिकेशन है, उसमें अगर आपके पास 5 लोग हैं, तो उसमें भी ईच एंड एवरी मेंबर ने क्या करना है, क्वालिटी को अचीव करना है, क्वालिटी को यूज़ करना है। ठीक है, तो ईच एंड एवरी मेंबर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का है, जो सिस्टम को डेवलप करने के लिए जो बंदे यूज़ हो रहे हैं, तो उन सब का क्या काम है, कि उन्होंने इस क्वालिटी को कैरी आउट करना है। ठीक है, तो मेन अगर प्रोसेस की बात करें, तो हमारे पास क्या है, क्वालिटी प्लानिंग। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्लानिंग। जितना अच्छा आपने प्लान किया होगा अपने प्रोजेक्ट को, उतना अच्छा आपका जो है प्रोजेक्ट का शेड्यूलिंग होगी, उतना अच्छा आपका टाइम पे प्रोजेक्ट बनेगा, और उतना कम बजट में आपके पास क्या बनेगा, प्रोजेक्ट आपका प्रोडक्ट क्रिएट होगा। तो विद इन टाइम, विद इन बजट, और कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है, तो इट मीन्स कि आपके पास एक क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है। तो इसलिए आपके पास प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो आप क्या करोगे, क्वालिटी ऑफ प्लानिंग क्रिएट करोगे। दूसरा ये है कि आपने यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है, यहाँ पे कंफर्म करना है कि क्या आपका सॉफ्टवेयर वैलिडेट एंड वेरीफाइबल है कि नहीं। ठीक है, वही कि आपकी यूज़र की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है कि नहीं, आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है कि नहीं। तो दैट इज़ व्हाट योर क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। दूसरा आपने यहाँ पे क्या करना है, मेजरमेंट एंड एनालिसिस। मतलब आपने अ, कह तो रहे हैं कि हमने क्या किया, कि क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट क्रिएट की, लेकिन आप उसको कन्वेंस कैसे करोगे, किस तरह से प्रूव लाओगे, कि उसको आपने कस्टमर को कहोगे कि ये मेरे पास क्या एक क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट है। या अगर फ्यूचर में आप उस प्रोडक्ट को रीयूज़ करते हो, तो वहाँ पे फ्यूचर में किस तरह से अपने कस्टमर को आप कन्वेंस करोगे कि जो ये ऑलरेडी प्रोडक्ट मेरे पास पड़ा हुआ है, ये आपके पास, मेरे पास क्या एक क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट है। तो किस तरह यहाँ पे आप क्या क्या स्टेप्स फॉलो करोगे, कौन सा मॉडल, अब आप मॉडल फॉलो करो, आप स्टैंडर्ड्स फॉलो करो, तो इट मीन्स आप क्या करो, आपके पास प्रूफ्स आ रहे हैं कि आपने एक क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट क्रिएट किया है। ठीक है, अब आ जाते हैं गोल्स। हमारे पास मेन गोल्स क्या है, प्राइमरी गोल्स क्या है। सबसे पहले तो यही है कि आपका जो प्रोसेसेस है, आप जो प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हो, उसके जो प्रोसेस है, उसके एक्टिविटीज़ है, इट शुड बी कंट्रोल। उसमें कोई एरर नहीं आना चाहिए, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए। जो प्रोसेस आपने डिफाइन किया, वो प्रोसेस जो है वो प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं। तो इट मीन्स आपके पास क्या, क्वालिटी, ये आपका मेन गोल है, कि आप जो प्रोसेस डिफाइन किए, प्रॉपरली डिफाइन किए हो, प्रॉपरली उनको फॉलो किया हो, और आपके पास जो एरर्स हैं वो सारे क्या हो गए हो, रिमूव हो गए, और सारे एरर्स डिफाइन हो और रिमूव हो। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स, जो आपने स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए हैं डॉक्यूमेंटेशन के स्टार्ट में, कि मैं ये स्टैंडर्ड्स यूज़ करूँगा, मैं मैकॉल मॉडल यूज़ करूँगा, मैं आईएसओ का मॉडल यूज़ करूँगा, या मैं फिर एवांस का मॉडल यूज़ करूँगा। जो मॉडल डिफाइन है वो आप मॉडल उसको यूज़ करो, ठीक है, प्रॉपरली। तो दैट इज़ व्हाट योर क्वालिटी का सेकंड स्टेप है। फिर आपने क्या किया, डेटा कलेक्शन एनालिसिस, जो आपने रिक्वायरमेंट्स का स्टेप किया है, तो उसमें आपने जो कलेक्शन ऑफ डेटा किया है, उसमें जो एनालाइज किया है, उसमें आपने जो स्पेसिफिकेशन की है, वो प्रॉपरली क्वालिटी के स्टेप्स को फॉलो करके की है कि नहीं। ठीक है, टेस्ट डेवलपमेंट। अब टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपने क्वालिटी को अचीव करने के लिए। टेस्टिंग का इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर उसको डिटेल में स्टडी करेंगे, कि टेस्टिंग के कौन कौन से स्टेप्स हैं, आपके पास मॉडल क्या है, उसको आप जो सॉफ्टवेयर के मॉडल्स है, वाटरफॉल मॉडल आपके पास है, इंक्रीमेंटल मॉडल, वहाँ पे किस तरह से उसको यूज़ करते हैं। वहाँ पे हमारे पास यूनिट टेस्टिंग क्या है,
फंक्शनल टेस्टिंग क्या है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या है, उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेमेस्टर में आपका पूरा सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, वहाँ पे फिर आप उसकी मेथड सीखोगे कि टेस्ट केसेस कैसे बनते हैं, टेस्ट प्लान कैसे बनता है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ आइडिया होना चाहिए कि क्वालिटी को अचीव करने के लिए आपके पास टेस्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि यहाँ पे भी फर्स्ट स्टेप में भी देख लें कि उन्होंने कहा है कि प्रोसेस कंट्रोल एंड एरर। तो जब तक आपको टेस्टिंग के थ्रू पता नहीं चलेगा कि एरर्स आपको फाइंड हुए हैं कि नहीं, आपने जो प्रोसेस है वो प्रॉपर डिफाइन है कि नहीं, तो इट मीन्स कि टेस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके प्रोडक्ट में। और फ्रॉम द स्टार्ट आपने क्या करनी है, टेस्टिंग को फॉलो करना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इश्यूज एंड सॉल्यूशंस, आपके पास जो टेस्टिंग करने के बाद आपको पता चला कि ये एरर्स आए हैं, तो वो एरर्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं कि नहीं प्रॉपर, और फिर उनके लिए सॉल्यूशंस आपने दिए हैं कि नहीं, और देने के बाद क्या वो प्रॉपरली सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। तो ये हमारे पास क्या है, उनके मेन गोल्स हैं। फिर हमारे पास आता है फॉलो अप इंश्योर करेक्टिवनेस एक्शंस, कि आपने जब क्वालिटी कंट्रोल कर लिया, प्रोडक्ट क्रिएट कर लिया, तो फ्यूचर में जाके जब यूज़र उसको यूज़ करता है, तो क्या जो एक्शंस आपने डिफाइन किए थे, जो स्टेप्स डिफाइन किए थे, तो वो क्या वो यूज़र के पास भी वही एक्शंस फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, वहाँ पे कोई एरर तो नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, मेन गोल्स है सॉफ्टवेयर क्वालिटी के। अब कस्टमर्स की बात करते हैं कि हम बार बार स्टार्ट यही कह रहे हैं कि हमने कस्टमर की जो है रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है, तो कस्टमर की सेटिस्फाई किस तरह से हम करेंगे। ठीक है, उसकी क्या क्या लेवल्स है कस्टमर्स को की सेटिस्फिकेशंस की। सबसे पहले तो ये है बेसिक प्रोमिसेस आर फुलफिल, कि कस्टमर के साथ जो आपने प्रॉमिस किया है, जो कस्टमर को कहा है कि हम आपको ये चीज़ डिलीवर करेंगे, जो आपने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो वो सब चीज़ें आप उसको फुलफिल करके दो, वो सारी चीज़ें आप उसके प्रोडक्ट में ला के दो। तो इट मीन्स आपने क्या की, बेसिक इंटीग्रिटी की, आपने प्रॉमिस को फुलफिल किया है, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसमें जो जो चीज़ें डिफाइन थी उन सब को फुलफिल किया। तो इट मीन्स आपने क्या किया, प्रॉमिस्ड एंड एग्रीड टू, कि आपने एग्जैक्टली वही चीज़ बना के दी है जो आपने प्रॉमिस की थी। तो ये आपके पास क्या है, बेसिक इंटीग्रिटी, और वो आपके पास क्या है कि आपने प्रॉमिस को क्या किया, फुलफिल्ड। सेकेंड हमारे पास है नो नेगेटिव कंसिक्वेंसेस पर प्रोड्यूस्ड, कि आपने जो प्रोडक्ट क्रिएट किया उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रही, उसमें कोई इश्यूज नहीं आ रही, तो वो आपके पास क्या आ गया कि नो नेगेटिव कंसिक्वेंसेस, कि उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रही। तो यहाँ पे भी इन्होंने यही कहा है, ये कस्टमर जो आपके पास यूज़ करते हैं आपके प्रोडक्ट को, मतलब 2-3 महीने के बाद या अच्छे खासे टाइम के बाद तक वो यूज़ करते हैं, और उसमें भी कोई एरर्स कोई प्रॉब्लम्स नहीं आते, तो इट मीन्स क्या था कि आपने जो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स थी उसको फुलफिल किया, और क्वालिटी को क्या किया, अश्योर किया, क्वालिटी अश्योर किया कि वहाँ पे कोई एरर्स नहीं है, और अगर आ भी रहे हैं तो वो उसको क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है कि आपने जो है गलत प्रोडक्ट क्रिएट नहीं किया, उसमें एरर्स नहीं आ रहे। तो ये हमारे पास क्या है, कस्टमर एक्सेस दैट द प्रोडक्ट डिज़ाइन हैज़ बीन वेल थ्रू आउट, तो कस्टमर खुश हो जाता है कि आपने जो मांगा था अपने प्रोड्यूसर से, अपने डेवलपर से, वो सब चीज़ें आपको मिल गई है। ठीक है, जो डिज़ाइन की बात की, जो यूज़र इंटरफेस है वो इतना अट्रैक्टिव है कि कस्टमर उसको यूज़ करके खुश हो रहा है, उसमें कोई मसले नहीं आ रहे। समटाइम्स क्या होता है कि हर बार ज़रूरी नहीं है कि आपका कस्टमर जो है आपसे खुश ही हो। समटाइम्स क्या होता है कि कुछ कस्टमर्स कहते हैं कि मैंने जो चीज़ कहा थी वो उन्होंने बना के दी है, लेकिन ये वो चीज़ नहीं जो मुझे चाहिए थी। ठीक है, मतलब जो चीज़ मैंने कहा था, तो यहाँ पे ये क्या हुआ कि आपने जो मॉडल था वो प्रॉपरली फॉलो नहीं किया। अगर आप यहाँ पे वो प्रोटोटाइप मॉडल फॉलो कर लेते, कि अगर आप उसको एक डमी सा प्रोटोटाइप डिफाइन करके दे देते कि ये एक डमी सॉफ्टवेयर, आप इसको यूज़ करके देखें कि आपको ये चीज़ चाहिए कि नहीं, तो इट मीन्स क्या है कि कस्टमर खुद भी क्लियर नहीं था, तो आपने मॉडल भी प्रॉपर फॉलो नहीं किया। अगर प्रोटोटाइप मॉडल फॉलो किया होता तो उससे आपको कस्टमर को पता चल जाता कि अच्छा नहीं, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए। तो ये आपके पास क्या है कि आपने अपने कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स है, रिक्वायरमेंट स्पेस पे बहुत फोकसली, बहुत ध्यान से रिक्वायरमेंट्स उठानी है। क्योंकि समटाइम्स कस्टमर जो चीज़ कहता है लेकिन फिर फ्यूचर में कहता है कि नहीं, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मुझे तो ये चीज़ चाहिए। तो वो क्या है कि फिर आपके पास जो है प्रोडक्ट प्रॉपर्ली क्रिएट नहीं होता। तो आप जो है मॉडल्स को बहुत अच्छे से स्टडी करो और एक अच्छा मॉडल यूज़ करें। सही। फिर क्या आगे, कस्टमर इज़ डिलाइट, कि कस्टमर आपने जो प्रोडक्ट क्रिएट किया है उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, उसमें कोई एरर्स नहीं है, आपने जो अपने प्रोमिस थे उसको फुलफिल किया, बल्कि उनके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा क्रिएट करके दिया। तो वो क्या हो गया, कस्टमर आपसे खुश हो गया। तो जब वो खुश होगा तो वो आपको क्या करेगा, अच्छे रिव्यूज़ देगा, अपने जो बाकी कोलीग्स हैं, अपने बाकी जो फ्रेंड्स हैं, जो दोस्त हैं, जो भी है, उनसे कहेगा कि आपसे आगे सॉफ्टवेयर क्रिएट करें। तो इससे क्या होगा कि आपकी भी सेल्स अच्छी होंगी, आपका भी नाम होगा। तो ये क्या हुआ कि अगर आपने क्या किया,
کسٹمر کی ایکسپیکٹیشنس کے مطابق کریٹ کیا, وہاں پہ کوئی پرابلمس نہیں آئی, تو کیا ہوا, آپ نے ایک تو کوالٹی آف اے پروڈکٹ کریٹ کیا. دوسرا یہ ہے کہ کسٹمر آپ کو کیا کرے گا, ریویوز کرے گا باقی ٹیم ممبر سے. تو کسٹمر کے یہ کیا تھی, 3 اسٹیپس تھے ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے. پہلا یہ کہ اس کے پرومسز کو فلفل کریں. پرومسز کو فلفل کرتے وقت یہ چیز چیک کریں کہ جو چیز وہ کہہ رہا ہے کیا وہی چیز اس کو چاہیے کہ نہیں. تو اس میں آپ کے پاس یہی ہوگی, جو سافٹ ویئر کے ماڈلس ہیں جیسے واٹر فال ماڈل ہو گیا, انکریمنٹل ماڈل ہو گیا, پروٹوٹائپ ماڈل ہو گیا, آپ کے پاس ایجائل ماڈل ہو گیا, وہ پھر بہت امپورٹنٹ چیز یہاں پہ آ جاتی ہے کہ جتنا اچھا آپ ماڈل کریٹ کرو گے نا, اتنا اچھا آپ کی ریکوائرمنٹس گیدر ہوں گی. تو وہ کیا ہوگا کہ یہ پرابلمس پھر آپ کے پاس نہیں آئیں گی, یہ والی کہ کسٹمر کو جو خود بھی کلیئر نہیں ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے, مجھے یہ چیز نہیں چاہیے تھی, تو یہ چیز آپ کی کلیئر ہو جائے گی. تو جیسے ہی کلیئر ہوگی, آپ نے اس کی جو ریکوائرمنٹس تھی وہ کلیئر کر دی, ایک اچھا پروڈکٹ کریٹ کر دیا, تو وہ کیا ہو جائے گا, آپ سے خوش ہو جائے گا. جتنا اچھا خوش ہوگا اتنا اچھا آپ کو کل کے وہ آ کے پھر دوبارہ آپ سے پروڈکٹ کریٹ کروائے گا, دوسرے لوگوں سے بھی کہے گا کہ آپ کا آپ سے آ کے سافٹ ویئر کریٹ کرے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہو گیا, کسٹمرز کی سیٹسفیکیشنز ہو گئی. اب کیا ہے کہ پیپلز کی کوالٹی ایکسپیکٹیشنس, وہی کسٹمر کی ایکسپیکٹیشنس کیا ہے, یہی دو چیزیں ہیں کہ جو سسٹم جو چیز آپ سے مانگ رہا ہے وہ آپ نے فلفل کیا ہے کہ نہیں. تو کیا ہوگی, آپ کے پاس ویریفیکیشن. ٹھیک ہے, اگر اس نے آپ سے شاپنگ ویب سائٹ مانگی ہے تو شاپنگ ویب سائٹ میں جو جو سسٹم کی ریکوائرمنٹس ہے, کیا آپ نے وہ فلفل کی ہے کہ نہیں, اور کیا آپ نے اس کو شاپنگ ہی ویب سائٹ بنا کے دی ہے کہ نہیں, کسٹمر کی جو ریکوائرمنٹس ہے اس کو آپ نے فلفل کیا ہے کہ نہیں. تو دیٹ از واٹ یور ویلیڈیشن. ٹھیک ہے, تو وہی بات ہو گئی, کسٹمر کی ایکسپیکٹیشنس کیا ہو گئی, دو چیزیں, ویریفیکیشن اینڈ ویلیڈیشن, کہ سسٹم کی ریکوائرمنٹس آپ نے فلفل کی ہے کہ نہیں, اور آپ نے کسٹمر کی ریکوائرمنٹس کو فلفل کیا ہے کہ نہیں. تو یہ آپ کی کیا ہوگی, پیپلس کی, آپ کی کسٹمرس کی کوالٹی ایکسپیکٹیشنس. اب ہمارے پاس آ جاتے ہیں کنزیومرز. آپ کے پاس کنزیومرز کون ہوتے ہیں, کنزیومرز وہی ہو گئے جس کے لیے آپ پروڈکٹ کریٹ کرتے ہو, جس کے لیے آپ فنکشنلٹی, پروڈکٹ کی فنکشنلٹیز کریٹ کرتے ہو, ان کی سروسز کو ڈیفائن کرتے ہو. تو وہ آپ کے پاس کون ہو گئے, کسٹمرز اینڈ یوزرز. ٹھیک ہے, دو لوگ ہو گئے, کسٹمرز اینڈ یوزرز, جو آپ سے آ کے سافٹ ویئر کریٹ کرواتے ہیں, تو وہ آپ کے پاس کیا, کنزیومرز. اب آپ کے پاس دو طریقے کے کنزیومرز ہوتے ہیں, کسٹمرز اینڈ یوزرز. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے چیپٹر 2 میں بھی یوزرز میں ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا کہ آپ کے پاس ویرائٹی آف یوزرز ہوتے ہیں, کوئی ایک کسٹمر نہیں ہوتا. ایک وہ کسٹمر ہوتا ہے آپ کے پاس جو آپ سے آ کے کہتا ہے کہ مجھے پروڈکٹ کریٹ کر کے دو. ٹھیک ہے, ایک وہ کسٹمر ہوتا ہے کہ آپ, اب فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک کسٹمر آیا ہے, وہ کہتا ہے کہ مجھے شاپنگ ویب سائٹ کریٹ کر کے دیں. ٹھیک ہے, آپ نے شاپنگ ویب سائٹ کریٹ کر کے دے دی. تو اب آپ کا جو کسٹمر ہے وہ آپ کے وہ جو ہے ڈومین پہ جائے گا, اور سوری ہوسٹ پہ جائے گا, اور اپنی ویب سائٹ کو وہاں پہ جا کے ڈال دے گا, اور آپ اس کی ویب سائٹ جو ہے وہ کنٹینیو ہو جائے گی. تو جو اب بار بار یوزرس آ کے اس کی ویب سائٹ کو یوز کریں گے, تو وہ کون ہو گئے, یوزرس ہو گئے. ٹھیک ہے, تو اس شاپنگ ویب سائٹ کی ایگزامپل میں کسٹمر کون تھا آپ کے پاس, جس نے آ کے آپ سے ویب سائٹ کریٹ کروائی, اور یوزر کون تھا, جو آ کے اس ویب سائٹ کو یوز کر رہا ہے. تو وہ آپ کے پاس کون ہوگا, یوزرس. یا پھر آپ کے پاس کسٹمر آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ مجھے گیم کوئی بنا کے دو. ٹھیک ہے, آپ اس کو گیم بنا کے دیتے ہو, تو وہ کسٹمر جو ہے پلے اسٹور پہ گیم ڈال دیتا ہے. اب اس گیم کو جو لوگ بار بار انسٹال کریں گے, یوز کریں گے, تو وہ آپ کے پاس کون ہو جائیں گے, یوزرس. تو یہ انہوں نے اسی لیے کہا کہ چاہے وہ انٹرنل یوزر ہو یا ایکسٹرنل یوزر ہو, کسٹمرس وہ ہیں آپ کے پاس جو آپ کے پاس آ کے سافٹ ویئر کریٹ کرواتے ہیں, اور جس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے, ان کو پروفٹ ہوتا ہے, ان کو منی ملتا ہے. تو وہ آپ کے پاس کیا ہوگے, کسٹمرس. اور یوزرس وہ ہیں جو آپ کا جو جو پروڈکٹ ہے, جو سافٹ ویئر کو یوز کرتے ہیں, آپ کی سروسز کو یوز کرتے ہیں, تو وہ آپ کے پاس کون ہو گئے, یوزرس ہو گئے. تو چاہے آپ کے پاس کسٹمرس ہیں, آپ کے پاس یوزرس ہیں, آپ نے ان دونوں کی ریکوائرمنٹس کو فلفل کرنا ہے. تو آپ جب پروڈکٹ کریٹ کر رہے ہوگے, پروڈیوسرس جب پروڈکٹ کریٹ کر رہے ہوگے, تو انہوں نے پھر اس چیز کا بہت خیال کرنا ہے کہ آپ کا جو سافٹ ویئر ہے وہ کون کون یوز کرو گے. تو ہم اکثر کہتے ہیں نا آپ کے اینڈ یوزرس, اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں, اینڈ یوزرس. ہم نہ کسٹمر کہتے ہیں, ہم نہ یوزر کہتے ہیں, ہم اینڈ یوزرس کہتے ہیں, یا اسٹیک ہولڈرس کی بات کرتے ہیں کہ آپ کا پروڈکٹ کون یوز کرے گا. آپ نے پہلے اس کو ڈیفائن کرنا ہے. اب شاپنگ ویب سائٹ ہے, تو شاپنگ ویب سائٹ پہ تو کسٹمر نے تو کیا یوز کرنا ہے, ایز اے ایڈمن یوز کرنا ہے اس کو. تو ایڈمن کی پھر آپ اس کی پراپرٹیز ڈیفائن کرو گے. اب یوزر ایز اے اس کو کلائنٹ یوز کرے گا, آ کے اس کو ویب سائٹ کو یوز کرے گا, پروڈکٹس کو بائی کرے گا, پروڈکٹس کو ویو کرے گا, وہاں پہ ریویوز ڈالے گا. تو وہ سب چیزیں پھر آپ اس پہ یہاں پہ بہت دھیان سے اس کو نوٹ کرو گے. ٹھیک ہے, تو کنزیومرس ہمارے پاس کیا ہے, دو طرح کے, کسٹمرز اینڈ یوزرز. پروڈیوسر سمپلی وہی پروڈیوسرس ہیں جو پروڈکٹس کو کریٹ کرتے ہیں, جو پروڈکٹس کو ڈیولپ کرتے ہیں. تو اب یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ پروڈیوسرس آپ کے پاس صرف کوڈرس نہیں ہیں, پروڈیوسرس وہ ہیں جو
प्रोडक्ट को क्रिएट करने में हेल्प कर रहे हैं, जैसे कि रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग के पीपल हो गए, स्पेसिफिकेशंस के टीम मेंबर्स हो गए, आपके पास हाई जो आर्किटेक्ट क्रिएट करते हैं वो टीम मेंबर्स हो गए, कंस्ट्रक्शन जो सीडो कोड क्रिएट करेंगे, आपके पास इंटरफेस क्रिएट करने वाले कोडर्स, आपके पास टेस्टर्स, आपके पास अब टेस्टिंग में फिर आपके पास यूनिट टेस्टिंग की टीम होती है, सिस्टम टेस्टिंग की टीम होती है, आपके पास इंटीग्रेशन टेस्टिंग की टीम हो गई, मेंटेनेंस में फिर आपके पास कौन कौन से कितने कितने टीम मेंबर्स थे। तो जितने टीम मेंबर्स आपके पास प्रोडक्ट को क्रिएट करने में यूज हो रहे हैं, वो सारे आपके पास कौन है, वो सब आपके पास प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है। अब क्वालिटी एक्सपेक्टेशंस की बात की है कि यूजर की क्वालिटी एक्सपेक्टेशंस क्या, एंड प्रोड्यूसर की क्वालिटी एक्सपेक्टेशंस क्या। आपके पास यूजर्स की क्वालिटी एक्सपेक्टेशंस क्या है कि आपका जो सॉफ्टवेयर आप क्रिएट कर रहे हो वो करेक्ट होना चाहिए, मतलब वो कंप्लीट करे आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है, आपके जो फंक्शंस है वो प्रॉपर्ली उनको कंप्लीट करे। आपका सॉफ्टवेयर जो है वो आपके पास जो है वो कभी भी फेल ना हो, वो अगर वो फेल हो जाता है तो वो अपने आप को रिकवर करते हैं, तो वो क्या है, रिलायबल। यूजेबिलिटी, इजी टू यूज हो। इंटरऑपरेबिलिटी, कहीं और आप उसको यूज करना चाहते हो, मतलब फाइल्स को पैकेजेस को कहीं और ओपन करना चाहते हो, उसको यूज करना चाहते हो सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर, तो वो आराम से हो सके। ठीक है। इंस्टॉलेबिलिटी यही है कि आपने जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया वो इजी टू इंस्टॉल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। एडॉप्टेबिलिटी, एडॉप्टेबिलिटी यही है हमारे पास कि कहीं आपने कहीं और इन्वायरमेंट में इसको यूज़ करना है तो वहाँ पे भी आराम से वो यूज़ हो रहा हो। एंड कॉस्ट ये है कि विद इन बजट, अब आपके पास जो कस्टमर उसको यूज़ कर रहे हैं विद इन बजट हो उसके, तो ये सारी उसकी क्या है, क्वालिटी एक्सपेक्टेशंस है। प्रोडक्ट की क्वालिटी एक्सपेक्टेशंस क्या है कि आपके पास जो कंस्ट्रेंट्स है, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स है, जो उनकी उनसे आपने प्रॉमिस किया उन सबको आप क्या करो, फुलफिल करो। ठीक है। यहाँ पे फिर जो प्रोडक्ट आपके पास है आप उसको इजी मॉडिफाई कर सको, इजी, वो आपके पास मतलब फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई एरर आ जाता है तो वो इजी टू आपके पास लोकेट हो और इजी टू चेंजेबल हो, तो वो आपके पास क्या होगी, मॉडिफाइबिलिटी होगी। मेंटेनेबिलिटी यही हो गया कि आप उसको इजी मेंटेन कर सको। पोर्टेबिलिटी ये कि एक्स्ट्रा जो हार्डवेयर आप उसमें यूज़ कर सको, सॉफ्टवेयर यूज़ कर सको, तो वो इजी टू पोर्टेबल हो, या किसी और इन्वायरमेंट में आप जाके उसको यूज़ करें तो वो आराम से जाके वो यूजेबल हो। प्रॉफिटेबिलिटी यही है कि आपको प्रॉफिट मिल रहा हो प्रोड्यूसर्स को, मतलब इतना अच्छा प्रोडक्ट क्रिएट करे कि कस्टमर तो आपसे खुश हो जाए, फिर आगे वो जाके रिव्यूज़ करे, वो खुद भी आए आपसे दोबारा दूसरे सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए, तो वो आपके पास क्या होगी, प्रॉफिटेबिलिटी होगी। ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, क्वालिटी एक्सपेक्टेशंस है। अब इसमें जो ये रेड मार्किंग है तो आप ये देख ले कि ये जो वो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स है जो हमने मैकॉल मॉडल में भी पढ़ा था और इसमें हमने जो है आईएसओ स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ा था। तो ये कुछ क्वालिटी एट्रीब्यूट्स है जो बार बार यूज हो रहे हैं, तो इस वजह से हम फिर उन क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को लाजमी अचीव करते हैं। अब प्रैक्टिसेस हमने मतलब कैसे इंश्योर होना है कि हमारे जो एसडीएलसी प्रोसेस है उन सब में जो है हमने क्वालिटी एट्रीब्यूट्स फॉलो किए हैं, या क्वालिटी के जो स्टेप्स हैं उन सबको फॉलो किए हैं। सबसे पहला क्या है हमारे पास, फंक्शनल टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग ये है कि जो आपने फंक्शंस क्रिएट किए हैं आप उसको अपने यूजर इंटरफेस के साथ चेक करो कि क्या वो प्रॉपर्ली उनके साथ काम कर रहे हैं। मतलब आपने कोडिंग तो कर ली, आपने डेवलप कर लिया, आपने आर्किटेक्ट क्रिएट कर लिया, सारे स्टेप्स कर लिए, लेकिन यूजर जो है उसका तो बैक एंड से तो कोई काम ही नहीं है। यूजर का क्या काम है, आपका फ्रंट एंड से। और फ्रंट एंड पे आपके पास क्या पड़ा है, तो क्या यूजर उनसे अट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं। आपने कोड कैसे किया, क्या आपने जो कोड किया, आपने जो कंपोनेंट्स को डेवलप किया वो आपके यूजर इंटरफेस के साथ प्रॉपरली काम कर रहा है भी कि नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे आपने इंश्योर होना है कि आपने जो डिज़ाइन क्रिएट किया है क्या वो आपके इंटरफेसेस के साथ आपने उसके साथ प्रॉपरली मीट कर रहा है कि नहीं। समटाइम्स ये होता है कि आपने कोड बहुत अच्छा किया होता है लेकिन आपका इंटरफेस जो होता है वो इतना अच्छा नहीं होता, तो वो प्रोडक्ट आपका की ज़्यादा वैल्यू नहीं होती। ठीक है। यूज़र को क्या करना है, यूज़र को आपकी कोडिंग, आपकी टेस्टिंग, आपकी इन चीज़ों से काम नहीं है। यूज़र को क्या काम है कि एक अच्छा प्रोडक्ट हो कि वो उससे क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके, उसको ईजी टू यूज़ कर सके। तो जितना अच्छा इंटरफेस आप क्रिएट करोगे उतना अच्छा आपका जो है जो यूज़र है उसको आके यूज़ कर सकेगा। ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जब भी आप फंक्शनल टेस्टिंग करो, ठीक है, अपने प्रोसेस को, तो उसको आप जो इनपुट्स हैं उसके जो यहाँ पे आप मेन्यूज़ की उन्होंने बात की, अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट पे जो जो मेन्यूज़ है, जो जो टैब्स है, क्या वो प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं कि नहीं। वहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स है, वहाँ पे जो बटन्स हैं आपने लगाए हुए, वहाँ पे आपने जो लिंक्स रखे हुए क्या वो प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं कि नहीं। अब इंस्टॉलेशन प्रोसेस, अगर आपने कोई गेम बनाई है तो गेम जब इंस्टॉल हो रही है तो वहाँ पे इंस्टॉलेशन जो प्रोसेस है, मतलब वो आपसे जब आप प्ले स्टोर पे जाओ, आप
उसको इंस्टॉल का बटन करते हो तो सबसे पहले तो एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है, आपसे परमिशन लेता है कि क्या आप उस पर वाईफाई ऑप्शन एक्सेप्ट करते हो कि नहीं, कि आप उसका अक्सर उसमें आ जाता है, पिक्चर्स का ऑप्शन आ जाता है। तो वो सब आप उसको एक्सेप्ट करने के बाद उसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं, क्या वो अट्रैक्टिव है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, आपके पास फंक्शनल टेस्टिंग हो गई। सेकंड आपके पास क्या होगी, पे रिव्यूड कोड। अब पीयर रिव्यूड कोड क्या है कि जब आप कोड बना लो तो आपने जो कोलीग्स हैं उससे क्या करवा ले, चेक करवा ले। क्योंकि समटाइम्स क्या होती है कि आप लोग एक चीज़ पे काफ़ी टाइम से काम कर रहे होते, तो आप काफ़ी टाइम से काम कर रहे होते ना, तो आपका ब्रेन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। वो फिर उसको एरर्स को फाइंड नहीं कर पाता, या कोई छोटी से छोटा सेमी कोलन का ही एरर होता है, समटाइम्स आपको फाइंड नहीं हो रहा होता। तो अपने आप कोलीग को देंगे ना, तो वो फ़ौरन से ये कॉमन बात है कि आपके कोलीग को देते हैं, वो फ़ौरन एरर फाइंड आउट कर लेता है। तो इससे आपको एक तो फ़ायदा होता है कि आपका कोड जो होता है वो जल्दी एरर फ्री हो जाता है। दूसरा यहाँ पे क्या हो जाता है, कोड इज़ एफिशिएंट। एफिशिएंट यहाँ पे क्यों हो जाता है कि हो सकता है आपने कोई जो मेथड यूज़ किया वो बहुत लॉन्ग मेथड है, ठीक है? वो एक तो लॉन्ग मेथड है, या वो प्रॉपर मेथड नहीं है। आप जब तो वो फिर प्रॉपर मेथड आपने डिफाइन नहीं किया हुआ, तो वो आपने जब अपना कोड इंश्योर करवाया ना अपने कोलीग से, तो वो आपको कह देगा कि ये मेथड बहुत लॉन्ग है, इसकी जगह ये शॉर्ट मेथड है, आप इसको यूज़ कर लें। या आपने जो ये मेथड डिफाइन किया, ये प्रॉपर मेथड नहीं है, ये वाला मेथड यूज़ करें। तो वो क्या होगा कि आपके जो कोड हो गए वो क्या हो गए, ज़्यादा एफिशिएंट हो गए। जो लॉजिकल एरर्स बाद में फ्यूचर में आने थे, वो यहीं पे आपके जो लॉजिकल एरर्स थे वो सारे जो होंगे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है? उसके अलावा आपकी जो डेवलपर्स टीम है उनके साथ कम्युनिकेशन साथ साथ होती जाएगी, वहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग होती जाएगी कि एक प्रॉब्लम पे डिफरेंट जो आपके कोलीग्स हैं उनके आइडियाज़ आ जाएंगे कि नहीं ये वाला मेथड यूज़ करो, ये ज़्यादा अच्छा है। जो एक्सपीरियंस बंदा होगा वो आपको आइडिया देगा कि ये स्टेप्स यूज़ करो, तो इससे ज़्यादा अच्छा आपका कोड क्रिएट होगा। तो क्या होगा कि आपके स्टेप बाय स्टेप क्या होगा, कोड क्या हो रहा है, रिव्यू हो रहा है, आपकी कम्युनिकेशंस हो रही है, ठीक है? और कोडिंग टाइम पे आपकी क्या हो रही है कि वहाँ पे अगर कोई एरर है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कभी कोड इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ, और वहाँ पे आपके इम्प्लीमेंटेशन से पहले ही आपके एरर्स जो हो गए फाइंड भी हो गए और रिमूव भी हो गए। तो ये आपको एक सेकेंड स्टेप है पे रिव्यू के लिए, आपकी क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए। एंड थर्ड आपके पास है यूज़र परफॉर्मिंग टेस्टिंग, कि आपके पास जो यूज़र ने जो प्रोडक्ट यूज़ करना है, आप उसकी परफॉर्मेंस चेक करो प्रोडक्ट की, कि क्या उस प्रोडक्ट की स्पीड कैसी है, ठीक है? वो आपको विद इन सेकेंड्स, ये विद इन सेकेंड्स आपको जो रिजल्ट है वो दे रहा है कि नहीं, ठीक है? तो इसमें आपके पास जो टेस्टिंग उन्होंने बात की है, मैनुअली एंड ऑटोमेटिक टेस्टिंग है। जो आप इधर आपको सूटेबल लगती है मैनुअल टेस्टिंग करना, आप उसको यूज़ करो। ऑटोमेटिक टेस्टिंग सूटेबल है वो करो। लेकिन करके दोनों टेस्टिंग करके आप ये चेक करो कि क्या आपकी वहाँ पे जो परफॉर्मेंस है, क्या वो आपके प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस अच्छी है कि नहीं, ठीक है? तो ये आपकी क्या थी, आपके सॉफ्टवेयर क्वालिटी का क्या था, आज का लेक्चर था, जिसमें हमने यही पढ़ा कि क्वालिटी सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग यही है कि आपने इंश्योर होना है कि क्या आपका जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उस सारे स्टेप्स में आपने क्वालिटी को अचीव किया है कि नहीं, क्वालिटी के प्रोसेस को फॉलो किया है कि नहीं, आपने वहाँ पे वेरीफाई एंड वैलिडेशन की है कि नहीं, ठीक है? तो ये सारे स्टेप्स थे सॉफ्टवेयर क्वालिटी के लिए। कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं कि आप पहले उसके प्रॉमिस को फुलफिल करें, ठीक है? तो उनको फुलफिल करने के लिए जो आपने रिक्वायरमेंट्स गैदर किए हैं उसको डिटेल में स्टडी करें, वहाँ पे मॉडल डिफाइन करेंगे कौन सा मॉडल प्रॉपर्ली, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि कस्टमर को खुश करना बहुत डिफिकल्ट काम होता है। तो जितना रिक्वायरमेंट्स में उससे रिक्वायरमेंट्स अच्छे से ले सकते हैं आप उसको ले लें, और जब आपका कस्टमर आपसे खुश हो जाएगा तो आप ही का फ़ायदा है, ठीक है? उनकी एक्सपेक्टेशंस की बात की है, कंज्यूमर्स की बात की है, कौन कौन है आपके पास, कस्टमर्स हैं, आपके पास यूज़र्स हैं, प्रोड्यूसर्स कौन है, जितने भी एसडीएलसी के टीम मेंबर्स हैं वो सब आपके पास कौन है, प्रोड्यूसर्स हो गए, ठीक है? उनकी एक्सपेक्टेशंस की बात की हमने, और किस तरह से इंश्योर होना है कि आपने क्वालिटी को अचीव किया है, तो वो क्या है, फंक्शनल टेस्टिंग है, फिर से रिव्यू करवाना है अपने कोड को, और यूज़र परफॉर्मेंस है। तो ये आज का आपका लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी कंटिन्यू करेंगे कि डिफेक्ट्स हमारे पास क्या है, और हमारे पास कॉजेज़ कौन कौन सी है सॉफ्टवेयर एरर्स की, ठीक है? तो होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया हो। अगर इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो तो हम इंशाल्लाह कोई ऑनलाइन सेशन रख के और अपना आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर लेंगे।